Hello students, now I am going to start your geography chapter 3, water resource. So water is the most important for the human beings as well as plants and animals also. So firstly we will try to understand the water availability. So water availability means आपके अर्थ सरफेस पे वाटर किस तरह से किस फॉर्म में अवेलेबल है. So as we know we find the water in ocean, river as well as in form of the snow. So let me try to understand. Water is a renewable resource. As we all know, with the help of the water cycle, water is renewed. So we can say that water is a renewable resource. 3/4 of the Earth's surface is covered with water, but only a small proportion of it account for fresh water fit for use. अर्थ सरफेस का लगभग थर्ड फोर्थ एरिया वाटर से कवर है. बट when we are discussing about the fresh water which are too much useful for us, so it is very small proportion. So according to analysis or data, we can see that 96.5% exist as ocean water. हमारी 100% जितना भी वाटर अवेलेबल है उसका 96.5% ओशन में देखने को मिलता है एंड 2.5 एज फ्रेश वाटर and 2.5% are available only as the fresh water. So we can say that here the fresh water is available in very small proportion. So let me try to understand about the India's. India receives nearly 4% of the global precipitation. इंडिया में ग्लोबल प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि पर ईयर एक साल में वर्ल्ड लेवल पे पूरे वर्ल्ड में कितना रेनफॉल हुआ है, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन. एंड अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन इंडिया रिसीव्ड ओनली 4%. क्या आपकी 100% जो प्रेसिपिटेशन है रेनफॉल से उसका 4% इंडिया में देखने को मिलता है. एंड when we discuss about per person वाटर अवेलेबिलिटी कि एक पर्सन्स को कितना वाटर अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया को 133 रैंक्स पे देखने को मिलती हैं. तो इंडिया की रैंक है पर पर्सन पर एनम के अकॉर्डिंग 133 ऑल ओवर द वर्ल्ड. So first of all we have already know कि water which are available for fit to use is very small and there are so many other reasons that meet the water scarcity. So let me understand the concept of the water scarcity. Water scarcity means shortage of water. It is usually associated with regions having low rainfall or drought prone areas. Water scarcity means shortage of water. Very simple word, we can say that the shortage of water is called the water scarcity. And we find the water scarcity in those areas which having the low rainfall, drought prone area जहाँ पे सूखा आते हैं. So in such type of area we find the water scarcity problem. In other ways we can define it. Water scarcity is the lack sufficient water as compared to its demand in a region. कि अगर हम इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करना चाहें वाटर स्कॉर्सिटी को, तो हम कह सकते हैं कि किसी एक रीजन में वाटर की जो डिमांड होती है उसके कंपेयर में जब वाटर सफिशिएंट ना हो, वाटर लैक होता है, दैट इज कॉल्ड एज द वाटर स्कॉर्सिटी. देयर आर सो मेनी रीजन्स फॉर द वाटर स्कॉर्सिटी. First is over exploitation. So first reason we find is over exploitation. Second is excessive use and unequal access to water among different social groups. Third is large population.
Fourth is bad quality of water. Over exploitation. In some area we find that water is used in very merciless. We can say that their water is not used, they are the exploit the water. आपके वाटर का यूज़ ना करके हम उसका एक्सप्लॉइट करते हैं, वाटर का हम शोषण कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे जो हम यूज़ करते हैं. सो दैट इज द ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड इट विल बी द कॉज फॉर द वाटर स्कार्सिटी. So there are so many reasons in which we find the over exploitation of the water resource. Excessive use and unequal access to water among different social group. कि हमारे पास जो वाटर अवेलेबल है उसका हर कोई हर तरीके से या हम कह सकते हैं इक्वल वे में यूज़ नहीं कर पाता है. कोई सोशल ग्रुप ऐसा होगा जहाँ पे वाटर बेवजह में यूज़ हो रहा है, कहीं पे वाटर बिल्कुल भी नहीं है. सो ये भी वाटर स्कार्सिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. लॉस पॉपुलेशन. जब संख्या बढ़ेगी, जनसंख्या या पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो निश्चित है कि वाटर की डिमांड्स भी बढ़ेंगी. और जब वाटर डिमांड्स बढ़ती हैं और उसको जब हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, दैट विल बी द सिचुएशन ऑफ द वाटर स्कार्सिटी. एंड बैड क्वालिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो रीजन फॉर द water scarcity. Just imagine a such area in which water is available in proper amounts, but it was totally disturbed. These are the very pollute water, so we can't use that water. ओशन एरिया है जहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा है बट हम उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमारे लिए बहुत यूज़लेस है. हम उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसको हम पी नहीं सकते हैं, उसको हम अपने डिफरेंट वर्क्स में लगा नहीं सकते हैं. सो इस तरह से भी हमको बैड क्वालिटी ऑफ वाटर्स भी हमारे लिए वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. सो वाटर हम सब जानते हैं कि वाटर का प्रयोग हम डिफरेंट टाइप्स के कामों के लिए करते हैं. सो वी ट्राई टू कंजर्व द वाटर रिसोर्स. वी ट्राई टू मैनेज द वाटर रिसोर्स इन अ प्रॉपर मैनर so that in future we can't face the totally unavailability of the water. So let me understand. We need to conserve and manage our water resource. What are the reasons why we need to conserve and manage water resource? So first is to safeguard ourselves from health hazards. As we know कि वाटर्स की कमी की वजह से अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर की कमी होती है तो उससे भी बहुत कई तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं. सो उनसे बचने के लिए भी वाटर रिसोर्स की ज़रूरत है. सो हमें अपने आप को सेफ रखने के लिए वाटर की आवश्यकता है. टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी एज वी नो टू प्रिपेयर द फूड आइटम्स वी यूज वाटर रिसोर्स. कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लिवलीहुड्स. हमारी लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए, आगे बराबर उसको बढ़ाए रखने के लिए भी वाटर रिसोर्स की ज़रूरत होती है. एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए भी वाटर रिसोर्स की आवश्यकता होती है. प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ का मतलब हम देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. सो ऐसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए भी हमें वाटर्स की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट इज द टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम. हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मिल करके अपने आप को एक सिस्टम में बांधे हुए इंटरडिपेंड हो करके अपने कामों को करती हैं. सो ऐसे कंडीशन में वाटर रिसोर्स भी हमारे लिए ज़रूरी होता है. एज वी नो, जैसे अगर हम एक पॉन्ड की बात करते हैं, एक तालाब है, तो तालाब का भी अपना एक इकोसिस्टम है. ओशियन है, ओशियन का अपना एक सिस्टम है. एक ग्रास लैंड है तो ग्रास लैंड का भी अपना एक इकोसिस्टम है. और उसमें रहने वाले जितने भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंड होते हैं.
सो नेचुरल इकोसिस्टम्स को बनाए रखने के लिए भी वाटर रिसोर्स की आवश्यकता होती है. सो वी शुड ट्राई टू कंजर्व the water resource and manage how to use the water resource. So we should take the step to manage the water resource and conservation. How can we conserve the water resource? So there are some basic on the top level, or you can say the big level. There are some basic 3 points we should try to take the steps and follow these steps to prevent the water resource. First is, do not overdraw the groundwater. Groundwater, as we know, हमारे अर्थ सरफेस के नीचे जो वाटर्स अवेलेबल होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ग्राउंड वाटर. और इस ग्राउंड वाटर का प्रयोग हम पंपिंग के द्वारा हम उसको निकालते हैं. डिफरेंट टाइप्स की मशीनों का यूज़ करके भी हम ग्राउंड वाटर्स को निकालते हैं और उसका हम यूज़ करते हैं. सो हमें ग्राउंड वाटर को ओवर ड्रॉ नहीं करना है. हम यूज़ करें बट उसको बहुत ज़्यादा उसका हम प्रयोग ना करें. जितनी ज़रूरत हो उसी के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर लें. सेकेंड है, तो अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल लेवल्स एंड डू नॉट पॉल्यूट वाटर. वाटर पॉल्यूशन से भी हमको अपने आप को बचाना है. कि हम वाटर रिसोर्स जितने भी, जैसे रिवर्स हैं, लैक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, तो हम क्या करते हैं, जितने भी वेस्टेज हो जाए ले जाकर उसी में डाल देते हैं. इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट्स. तो इससे क्या हो रहा है कि वाटर, जैसे हम उसमें कोई भी वेस्टेज हमने वाटर रिसोर्स में डाल दिया, हमने रिवर में डाल दिया या लैक में डाल दिया, तो क्या होगा, वाटर की क्वालिटी को डिस्टर्ब करने लगती हैं. दैट इज कॉल्ड एज द वाटर पॉल्यूशन. सो वाटर को पॉल्यूट करने से हमको बचना चाहिए. अडॉप्टिंग वाटर कंजर्विंग टेक्निक्स टू इरिगेशन. हमें वाटर को कंजर्व करने के लिए एक इरिगेशन टेक्निक्स में भी बदलाव लाना चाहिए. जैसे विलेज में हम देखते हैं कि वाटर से हमने पाइप्स का यूज़ किया, हमने पानी को जस्ट ऐसे छोड़ दिया और वो पूरी तरह से निकलता रहता है. बीच में वो वेस्टेज भी होते हैं, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पर भी, और जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ पर भी वो वाटर फैलती रहती है. सो हमें वाटर्स को इस तरह की ओवर यूजिंग से या ओवर एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए हमें इरिगेशन टेक्निक्स में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए. और उसके लिए हम ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकल जैसे टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं. जैसे एक तरीका होता है कि जहाँ पर पानी का छिड़काव, इट मीन्स जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पर हम उसको यूज़ करते हुए, उस मशीन का यूज़ करते हम पानी का छिड़काव करते चलें. इट मीन्स उसको पूरी तरह से उसको फ्लो कराने के बजाय हम उसको स्प्रिंग करा करके, उसका छिड़काव करके हम उसका यूज़ करें. ड्रिप इरिगेशन, जहाँ पे हमको ज़रूरत हो वहीं पे बस उसका यूज़ करें. सो देयर आर सो मेनी टेक्निक्स विच वी कैन यूज to conserve the water resource. So in next video we will try to understand the multi-purpose reserve valleys projects, and we will try to understand the dam.